अगर कोई और आपको ये ज्ञान दे रहा है ना कि ऐसा करो वैसा मत करो, वो तो ऐसे करती थी, वो तो वैसे करती थी, डोंट लिसन टू ऑल दैट क्रैप। लोगों की बातों में आकर बहुत ज़्यादा अपने को स्ट्रेस मत दो कि ये मत करो वो मत करो, एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर आप हेल्दी हैं, आपकी बॉडी ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा काम पूरे थ्रू आउट 9 मंथ तक चला है और अभी भी चल रहा है, तो कुडोज टू मी। यू डोंट हैव टू बी वरिड अबाउट कि क्या होगा, मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा है या मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ऑलरेडी इन टू द 3rd month ऑफ पोस्टपार्टम I had a normal delivery. हेलो डियर लेडीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो भी इस फेज से गुजर रहे हैं, बहुत सारे सवाल थे उनके रिलेटेड टू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। आई रिसेंटली हैड वन and I'm into already into the 3rd month of postpartum. I had a normal delivery. So people are like shocked to hear this. Even I'm shocked कि I delivered my baby normally, naturally. So there are a lot of questions that women are asking around me. So I thought कि why not make a video that would help others as well. So I have already have a list of questions that I have been asked about the first trimester. So basically I will be creating subsequent videos as well for the second trimester and the third trimester. So let's start without wasting a lot of time. So the first thing first, what were the symptoms or signs? So basically, initially, within 10 to 15 days, when you miss your, cycles, you will not observe very prominent symptoms. Some people may observe, some will not. In my case, I did not observe very prominent symptoms or signs. But yes, after almost 20 days of missing my cycles, one day I observed something very prominently. I was feeling nausea since morning and also like lightheadedness. And ultimately, till night, I just, everything was out. Then I felt some relief. That was the only day I felt like vomiting. Other than that, this never happened again throughout my pregnancy. So some people may observe or feel nausea, lightheadedness. Some may not. Like me, I did not observe or feel any such symptoms in the first trimester or the first month of my pregnancy. So that will differ. So you don't have to be worried about कि क्या होगा, मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा है या मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. Then the next question is what हाउ योर बॉडी गेट्स अफेक्टेड. तो ऑब्वियसली अगर जिनको बहुत ज़्यादा नॉजिया वॉमिटिंग ये सब हो रहा है, तो उनकी बॉडी थोड़ी वीक हो जाएगी. दे विल बी लेथार्जिक, दे विल फील वीक. बट जिनका नॉर्मल है, ये सिम्टम्स नहीं है, तो उनका नॉर्मली चलता रहेगा. आप अपने नॉर्मल डे टू डे काम कर सकते हैं. सो मेरा काम पूरे थ्रू आउट 9 मंथ तक चला है और अभी भी चल रहा है, तो कुडोज टू मी. तो उसका कारण यही है कि मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा सिम्टम्स इतने ज़्यादा एग्रेवेटेड नहीं थे, जिसकी वजह से मैं अच्छे से काम कर पाई. ट्रैवलिंग वॉज ईजी फॉर मी. कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं होता है. अगेन दिस विल डिफर पर्सन टू पर्सन. चेकअप के बाद, आपके फर्स्ट सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर ही आपको बताएगी कि आपकी बॉडी नॉर्मल है, everything is normal. If your health is okay, you are not weak, you don't have any hypertension, you don't have any diabetes, you don't have any other diseases or problems in your body, everything will be fine in the first trimester as well. लोगों की बातों में आकर बहुत ज़्यादा अपने को स्ट्रेस मत दो कि ये मत करो वो मत करो, everything is fine. अगर आप हेल्दी हैं, आपकी बॉडी ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं based on the advice of your OB. Okay, let's move to the next question. What can you eat and what to avoid in the first trimester? तो खाने में everything which is homemade, home cooked food आप कुछ भी खा सकते हैं. Avoid eating spicy, क्योंकि थोड़ा अगर आपको nausea ये वाली प्रॉब्लम है, तो वो और ज़्यादा बढ़ सकती है.
हल्का खाना खाएं अगर आपको ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। इन माई केस मैंने घर का ही प्रेफर किया है हमेशा। आई अवॉइडेड यूजिंग outside food, eating outside food, and now also I avoid eating outside food. It's not good for your health. And yes, मेरी ओबी ने मुझे एबीसी जूस राइट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही सजेस्ट कर दिया था। लाइक को पहले ही ट्राइमेस्टर से ऑलरेडी आपकी ओबी जो है ना वो आपको कैल्शियम, फॉलिक एसिड एंड देन आयरन, इसकी सप्लीमेंट्स आपकी चलती रहेंगी जो कि पूरे 9th मंथ तक चलेगी, उसके बाद भी चलेगी, मेरी अभी भी चल रही हैं। ओके, ट्रैवलिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये तो पूरे 9 महीने का एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, फ्लाइट ले सकते हैं या नहीं, फ्लाइट से आ जा सकते हैं या नहीं। तो पहले ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा जर्क वाला ट्रैवल ना करें। मना करती है डॉक्टर, मुझे भी मना किया था, ऑल्दो मेरी कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट थी, आई हैड नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा अवॉइड करें। दो आई ट्रैवल टू द माउंटेन्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि टाइम ही ऐसा था, ठंड का मौसम था और सबको पहाड़ों में जाना अच्छा लगता है, मुझे भी, तो मैं क्यों ना जाऊं जब सब जा रहे हैं। तो आई ट्रैवल्ड। तो if everything is normal for you, if your OB suggests, if your doctor suggests, you can travel. But yes, avoid too jerky, too bumpy, roads when you travel. तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। केवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं, इवन आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही ट्राइमेस्टर में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, व्हाट अबाउट एक्सरसाइजिंग? एक्सरसाइजिंग पहले ही ट्राइमेस्टर से आपको फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इससे पहले नहीं थे एक्टिव। डोंट गो इनटू वेरी रिगरस एक्सरसाइज। वीडियोस तो बहुत सारे आते हैं कि क्या क्या कर रही हैं महिलाएं बट नॉर्मल लोगों के लिए मैं बता दूं, नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। योगा कर सकते हैं। एक्सरसाइज अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, अगर आपकी डॉक्टर सजेस्ट कर रही है तो ही आप एक्सरसाइज भी करिएगा। बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग के लिए तो मना कर दिया जाता है, तो वो नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा जंपिंग, एरोबिक्स इस टाइप से अगर है तो उसको थोड़ा थोड़ा कम कर देना होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जैसा कि डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था वो मैं बता रही हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई डिलीवर्ड नॉर्मली, आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस which I'm sharing with you all. So it depends. Again, it will differ from person to person because every pregnancy is different. तो एक ही नियम हर किसी पे लागू नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर कोई और आपको ये ज्ञान दे रहा है ना कि ऐसा करो वैसा मत करो, वो तो ऐसे करती थी, वो तो वैसे करती थी, डोंट लिसन टू ऑल दैट क्रैप, ठीक है। लिसन ओनली टू योर डॉक्टर, व्हाट आई डिड, एंड आई हैव navigated my pregnancy very successfully. I'm proud of myself and also I'm thankful to my doctor. अच्छा किया मैंने कि केवल मैंने अपने डॉक्टर की ही बात सुनी थी और किसी की भी नहीं सुनी थी। आपको वो इंस्टिंक्ट थोड़ा सा होना भी चाहिए, आपके पास अपना लॉजिक भी होना चाहिए, अपना दिमाग भी होना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग एनी पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम एनीवन एल्स। चाहे चाहे वो आपकी मम्मी है, चाहे आपकी मदर इन लॉ है, आपका पति है, एनीवन, ठीक है। अपना लॉजिक भी यूज करो, थोड़ी रिसर्च करो और तभी किसी की एडवाइस मानो। इवन योर डॉक्टर, अगर डॉक्टर भी कुछ कहता है तो कम होम एंड थोड़ा सा सर्च कर सकते हो। यू हैव दैट एक्सेसिबिलिटी नाउ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ देयर आर नो सिम्टम्स? आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड कि ऐसा होता है, किसी किसी को कोई सिम्टम नहीं है। मेरे केस में मुझे एक दिन ऐसा हुआ था कि आई हैड दिस नॉजिया एंड वॉमिटिंग थिंग, बट उसके बाद कभी कोई ऐसा सिम्टम नहीं था, ना इसके पहले कोई सिम्टम था। तो एवरीथिंग इज फाइन, डोंट वरी एट ऑल। पहले ट्राइमेस्टर में एक ही एडवाइस रहेगी मेरी टू ऑल द वुमेन आउट देयर कि यस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज दिस इज द इनिशियल फेज, अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज, जहाँ पे अगर डॉक्टर की सलाह आपको ये है कि यू हैव टू रेस्ट, देन यू हैव टू रेस्ट। वेट नहीं उठाना है तो नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा टाइम होता है कि आप रिस्क नहीं ले सकते, लेनी भी नहीं चाहिए किसी को भी। इट इज़ अबाउट योर बॉडी ऑल्सो एंड ऑल्सो द वन body that is being developed inside you. So take care of yourself in the first trimester.
इसके बाद I will continue second trimester in the next video. Till then I'll get some of the questions from my friends as well. I already have some, and if you have any other question related to the first, second or third trimester or throughout your pregnancy anytime, you can just give a comment. Okay, and also if you like this video, do not forget to hit that like button, and also you can share with your friends and family if anyone is going to be a new mom soon. Bye.